व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो जी उनके लिए दुआ, जिन्होंने कहा मेरी सिस्टर को कैंसर है और हमारी खुद अपनी अजीज़ा है। मेरी खुद की बहन भी कैंसर, दिमाग में कैंसर हुआ था और वो बेचारी जो मैंने बताया था ना, तो एक हमारी और सिस्टर है उनको भी कैंसर है। बस दुआ करें अल्लाह ताला किसी को भी कोई भी बीमारी है ना, ये कैंसर हॉस्पिटल में ही होती है। तो वो मुझे बता रही थी कि आप भी इतनी को रेशो बढ़ गई हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा ना कैंसर की रेशो बढ़ गई हुई है। ऐसी बात तो टाइम ही नहीं होता ना हमारे पास, बिल्कुल। पेशेंट बहुत और ज़्यादा हो खुद गया की है। माँ के लिए उसको टाइम ही नहीं मिला था शुआएं लगने का है। बिल्कुल। ये है मुकद्दर इंसान का। बाकी जी आपकी सिस्टर को, जो हमारी अपनी अजीज़ा बीमार है, अल्लाह पाक शिफाई कामला से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। जितनी भी ज़िंदगी अल्लाह ताला हर बीमारी हर बला से हमें महफूज रखे। इज़्ज़त शर्म हया वाली सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे। हमें सुबह में तो जी यहाँ पहले मैं शाहद वीर की थोड़ी सी बातें आपको दिखाऊंगी और उस बंदे का हाल देखिएगा कि वो किस तरह टूटा हुआ है। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੋਤਾਹੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਪ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਵੀਰੇ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐ ਕਰੀ ਉਹ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੁੱਡੇ ਵੱਜੇ ਆ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਬਹਾਨੇ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਚ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਸਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਤੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਲਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਂਦੀ। ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੋਰ ਪੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਅੱਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੁਰਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ, ਭਰਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਨਾ, ਬਾਪ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚਲ ਜਾਂਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣੀ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਰੋਲੀ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਧਰ ਜਾਂਦੀ, ਇਧਰ ਮਾਮੂ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਸਾਫਜ਼ਾਰਾ ਹਕੀਕਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਲੇਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ? ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜੀ ਕੱਲ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਵਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਦੋ ਜੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋ। ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮੁਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਜਾਣੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਬਸ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਵਾਲਦ ਦੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਵਾਲਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ 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 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਆ ਵਾਲਦ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਫੜਨਾ ਭਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ। ਸਦੀਕ ਮਾਮੂ, ਸਦੀਕ ਮਾਮੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ। ਸਦੀਕ ਮਾਮੂ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਚਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਚਾਚਾ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਕੱਲ ਮਾਮੂ ਤੇ ਕੱਲ ਮਾਮੂ ਸੀਗਾ ਜੀ। और उस तो बाद और जिन्होंने जी ताहिरा का पूछा है तो उनका माँ बेटी का चैनल है, जो उज़मा के चाचू हैं बिलाल, उनकी वो मिसेज हैं, और किसी के ने कहा राशिद वीर, तो उनकी बीवी का नाम है जमीला अपी, उनका चैनल है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और मैंने थोड़ी सी मैं बातें करूँगी जो आज उसने की हैं, गफ़ार वीर ने बात की है, उस पर भी मैं बात करूँगी। वो आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा मुअम्मा मेरा साथ मिल के सुलझाना है, और ये जो है शादवी ने तो जो बातें की हैं ना, वो फिर बातें हम करते हैं। तो ये जो गफ़ार ने मतलब दिखाया, रोया, मैंने कहा था ना कि ये लोग इसलिए चुप थे कि उसको बहला रहे थे, फुसला रहे थे, और ये चाह रहे थे कि वो वापस आ जाए। जब वापस आएंगे तो फिर हम मतलब कि ज़ाहिर है हर बंदा अपनी इज्जत बचाता है, कि हम लोग कहेंगे जी लड़के गई, भाग के गई। तो मैंने तो खुद भी कहा था, अगर वो शर्म हया वाली होती, आ जाती, तो मियाँ उसकी सपोर्ट में एक वीडियो बना देता, जी हमारी मियाँ बीवी की लड़ाई थी, बात ख़त्म करें आप भी और हम भी, तो बात ख़त्म हो जानी थी। लेकिन जिसको फिर अल्लाह ताला ज़िल्लत दे, कहते हैं ना वैज़ु मंतशा व तज़ुल्लु मंतशा, और जो औरत बार बार बेशर्मियाँ कर रही हो, तो फिर जो खुद छुपना ना चाहे उसको किसने छुपाना है। गफ़ार भी आज बड़ा रोया है, उसकी बीवी भी संभाल रही थी, समझा रही थी कि ना रोए, ज़ाहिर आप बीमार हो। और मैं तो उसकी सुनी जिसमें उसने कहा कि मैं कहता था अल्लाह ताला ने मैंने धी क्यों नहीं हाँ, दी। हाँ, मैं बड़ा रोता था कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटी नहीं दी, लेकिन मैं आज कह रहा था शायद अल्लाह ताला ने सही फैसला किया जो मुझे बेटी नहीं दी। तो उसकी बीवी ने कहा नहीं, अल्लाह ताला बेटियां दे, शर्म हया वाली दे, इज़्ज़त आबरू वाली दे। जी बिल्कुल, जो जोड़ा अल्लाह ताला को पसंद होता है उसी को अल्लाह ताला बेटियां अता फरमाता है। ये नहीं है कि बेटियां, बात यही अल्लाह ताला नेक फरमाबरदार औलाद दे, ये नहीं कि बेटे हो वो भगा के ले आए तो वो सही है, तो बेटियां जो ऐसी बात नहीं, बेटा भी भगा के ले आए तो अच्छी बात, तो वो भी तो नहीं है, बेटे वो को भी तो उतने ऊपर ही निकलता। छितर मारने चाहिए जितना बेटी की दफ़ा इंसान को दुख हो। क्योंकि जब हमारा बेटा अगर किसी की बेटी को लेके आता है तो उसके वालिदैन का भी यही हशर होता है, जो आज उज़मा के वालिदैन, या अल्लाह ताला माफ़ करे। या मुझे जो मैंने बात करनी थी, जो उसने कहा जी, वो उसका भाई जो मुनीर का सदीक ब्रो, उनका भी सुना जी चैनल है, लानत भेजे ऐसे लोगों के चैनलों को बिल्कुल भी प्रमोट मत करें, ना देखें। तो वो जी उन्होंने कहा जी पहले हमें 6 लाख रुपया दे दें, फिर हम इसको आपके साथ भेज देंगे। तो फिर बाद में 3 लाख पे आ गया कि 3 लाख दे दो तो इसको ले जाओ। तो बंदा इनसे पूछे कि इन्होंने अगवा किया है या वो लड़की अपनी ये औरत तवान अपनी- है, ये तो अगवा हाँ पर जी, एतवान बन गया ना, ये अपनी मर्जी से गई है। हाँ जी। तो बाद में इन लोगों ने कहा कि हमने ये कहा कि आज ये 3 लाख भी चलो हम लोग मतलब उनका भी मतलब ये है कि हम वाईटी पे बैठ के, जिस तरह आसफ वीर बार बार कह रहा था 6 लाख का मामला, तो मुझे लगता है यही कोई मामला होगा। तो अगर हम चलो वाईटी से भी लोगों से मांग लेते हैं या दे देते 3 लाख, तो उन्होंने कहा अगर फिर ये ऐसा कर जाती या फिर वो वहीं जाके जैसा आपके सामने बदल जाती तो हम क्या मुझे करेंगे, जबरदस्ती ले आए ये हैं। फैसला सही था। अच्छा, मुझे कोई पल्ले नहीं पड़ी, मुझे कोई समझ नहीं आई, अल्लाह ताला माफ़ करे। जहाँ तक मुझे इल्म था, हमारे शहरों में ये कहा जाता है कि कुंवारी बच्ची जब भागती है ना, उसके जहाँ मर्जी जाके निकाह करके वो हो जाता है। जब कोई शादीशुदा औरत भागती है ना, तो उसके पेरेंट्स, उसका हस्बैंड उस पर वो केस करवाते हैं ना कि वो भी अंदर होती है, और जो उसको भगा के लेके जाता है ना, वो भी होता है। लेकिन मुझे यहाँ कोई समझ नहीं आई। इनका अपना रिश्तेदार साहब, पूरा इनका ख़ानदान था ये, और ये कैसा मामला कि उल्टा वो चोर को, तवाल को डांटे, और ये दूसरी साइड पे हो गया। हम लोग इसलिए अवेयर कर रहे हैं, हम लोग इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं। उधर लाइव लगाई हुई थी ज़ारा ने भी, और जो है इरम आपी तो आपको पता है काम करती है, या जो आप बात कर रहे हैं ना, वो इंशाल्लाह ताला परवीन फैमिली व्लॉग पे परी की मामा सुबह ये जो पैसों की बात है ना, वो आप लोगों से शेयर करेगी। आप लोगों ने ज़रूर देखना है कि हमारी फैमिली में एक और जगह पे और हमारे घर में कैसे फ्रॉड होने लगा था। तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे बैठे हुए थे। वो इंशाल्लाह ताला लंबी थोड़ी सी बात है, वो परवीन फैमिली व्लॉग पे कल पूरी बात है, हाँ, आप लोगों से ना शेयर करेंगे। अच्छा, इसलिए हम ये अवेयर भी कर रहे हैं। किसी सिस्टर ने कहा है तो हम लोगों ने कहा ठीक है। जी, इधर कमेंट आया। अच्छा, काफ़ी मैंने इनकी सिस्टर की भी वीडियो देखी, फिर मैंने वीडियो देखी है शाहद वीर जहाँ बैठ के ना
तो आसवीर के साथ बातें कर रहे हैं, वो आप सारी इधर सुन लेंगे तो फिर उस पर हम लोग तबसरा करेंगे। बात ये है कि मैंने आपको क्या कहा था कि मैं ना थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे बात को पसंद करते हैं। देखिए मैं इरम से भी बड़ी हूँ, मैं यूके किचन व्लॉग से भी बड़ी हूँ, मैं एक मैच्योर औरत हूँ, मैं बेटियों की भी शादी कर चुकी हूँ, बेटे की भी शादी कर चुकी हूँ और मैं नानी भी हूँ। अल्लाह ताला मुझे दादी भी बनाए, आमीन सुमा आमीन। सब औलादों को सब औलाद करे नेक फरमाबरदार साले औलाद आमीन। मेरे नज़रियात और होते हैं सोचने के। आप लोगों के जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी शादियाँ नहीं की, जिनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी बात और बात है। अच्छा, ये आज जो शादवीर की बातें सुनी, मैं क्या कह रही थी कि ना कहते हैं ना गरम गरम खाने से मुंह जलता है। हम लोग वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि जिस तरह ये बड़ी फैमिली धड़ल्ले से जो आज गफार ने कहा कि सानू बड़ी उम्मीद सी, तो मैं क्या एक बार मैनू लैके जाओ, पहले भी मेरे कहन ते आई थी। अच्छा, शादवीर ने जो आज बातें की, यकीन करे वो लड़का जिस तरह रो रहा है ना, मेरे लिए तो लड़का है, बच्चों जैसा है, भाइयों जैसा है, बेटों जैसा है, और उसको देख के तरस आ रहा है कि पहले माँ बाप मर गए और अपने बहन भाइयों को पाला, तो आज मतलब वो रोया है कि मैंने इस घर के लिए अपने सारी फैमिली को छोड़ दिया था। बीवी नहीं अच्छा समझती है, तो सबसे बड़ी ये गलती थी इस बंदे की ना, मैं आपको बताती जाऊँ। आप दोनों फैमिलियों को रखो, आप आदमी को ये नहीं कि बीवी नहीं चाह रही तो आप अपनों को छोड़ दे। क्यों? वो बीवी क्या है, वो उच्च शरीफ से आई हुई है कि वो अपने नीले पीले ख़ानदान के कोई भी बीवी जो है अपने बहन भाई मामे चाचे दादे लेके आ जाए, जो मर्द है उसके किसी रिश्तेदार की जगह न हो। क्यों? ये कौन सी बात है? आप लोग हमेशा ये सोचे खालाओं की जगह फुफिया नहीं ले सकती, फुफियों की जगह खालाएं नहीं ले सकती, ऐसी बात है। बिल्कुल। जहाँ मामू हैं वहाँ चाचे नहीं, जहाँ चाचे हैं वहाँ मामे नहीं है। इंसान हर रिश्ते से अच्छा लगता है, प्यारा लगता है कि ये बंदा जी इसका रख रखाव अच्छा है। ये क्या जी इरम का पूरा ख़ानदान, और वो क्या उसका अल्लाह ताला माफ़ करे, वो इरम की बेचारी की मैं बात करती हूँ तो फ़ौरन से मेरे मुंह में उसकी बात आती, सॉरी जी। उज़मा का पूरा ख़ानदान और शादवीर का यहाँ कोई भी बहन भाई ना हो। वही राशिद रोया, वही यास्मीन रोई और वही आज वो रोया। और बच्चों की आज उसने भी बात की, पता उसको भी था ये नहीं आएगी। जो आसवी ने कहा कि बहन भाई कह रहे थे या हमें सारे कह रहे थे कि इसके पीछे मत जाओ, जो जाती है वो जा चुकी होती है। जो कहते हैं ना मर्द है वो जाने भी लगे तो वो नहीं जा रहा होता। जो औरत होती है ना जो जाने का कहती है ना, वो समझो उससे पहले जा चुकी होती है। तो आज शादी ने भी वही बात की और उसने जो अब देखे झूठ नहीं बोल रहा, जिस तरह ये लोग पीछे पड़ गए थे ना इरम के। अब आसिफवीर को अगर कोई झूठा करना चाहे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं 100% आसिफवीर के साथ हूँ इस टाइम, क्योंकि वो शाहदवीर को साथ बिठा के बातें कर रहा है। उसने कहा जी मुझे 1.5 साल के साल पहले पता क्या आवाज़ें कुछ आती हैं कम या ज़्यादा, फिर कहीं से बात की मिस्टेक्स हो जाए तो सॉरी जी, बर्दाश्त कर लिया करे। अगर 100 बातें सही हैं तो एक बात गलत हो तो दरगुजर किया करे। साल या 1.5 साल कि मुझे कहीं मुनीर ब्रो ने किसी बहन को बार बताया होगा ना कितनी धड़ल्ले वाला बंदा है और कितनी वो बहन फिर वो गैरतमंद थी ना, और मुझे तो लगता है उसने इस जैसे बेगैरत बंदे को ब्लॉक भी कर दिया होगा। तो उसने आसिफवीर को बताया कि हो सकता है उसका आसिफवीर से ही कॉन्टैक्ट हो कि शादवीर को बताओ कि इसके घर में ना ये गुल खिल रहे हैं। तो उसने बताया, तो फिर उसने कहीं पूछा तो वो मुकर गई होगी, ज़ाहिर वो मानने वाली तो नहीं थी। उसके बाद वो चोरी चोरी थी। फिर बच्चों ने देखा, फिर बच्चों ने ताने, जिस तरह जी बताया गया शमाइला को कि ताने देते थे बच्चे। ये तो देखे जी बच्चे अगर माँ नमाज पढ़ रही है उसको देखेंगे तो सलूट करेंगे, माँ अच्छा काम कर रही है तो उसको देखेंगे तो वही काम भी करेंगे और सलूट भी करेंगे। और माँ गंद कर रही है ना तो लोग छितर मारते हैं, जो औलादे हैं ना। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताती कि जो वालिदैन होते हैं ना वो माफ़ कर देते हैं, जो औलाद होती है वो माफ़ नहीं करती। औलाद तो आजकल के दौर में अच्छे भले माँ बाप को नहीं माफ़ कर रही। आजकल अच्छे भले माँ बाप को बेचारों को ओल्ड होम फेंका जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है, और बीवियों के लिए कहा जाता है या लड़कियाँ शोहरों के लिए माँ बाप को गलत कह देती हैं। तो जो माएँ कर ही ऐसी गई हों उनकी क्या जगह है। और मतलब कि वो बात जो हो रही है कि उसने कहा कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। मुझे नहीं पता कि मुझे पता पहले भी किसी ने बताया कि तीसरा घर इनका है, तो मुझे तो ये पता था ये शाहदवीर का घर है, साथ आबदवीर का घर था जो इन्होंने उज़मा की वालदा साहबा ने लिया था। फिर उसके बाद लाहौरी वीर का घर है, तो उसके साथ फिर कहीं होगा या मुनीर ब्रो का घर है। और इनके चैनलों के जो मुझे नामों का नहीं पता, तो आपको पूछने की ज़रूरत भी कोई नहीं है। वो उधर अपनी उसकी जो अभी फिर कुत्ते वाली की है ना अपने ने शाहदवीर ने के मामा चाचा, तो आजकल जी कोई मामे चाचे नहीं, आजकल तो सगे मामे चाचे कोई नहीं है। वो यजीद
मामा नहीं बन रहा था, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो है अकीदत करते हैं, उनकी हुर्मत को सलाम, जिन्होंने ये रिश्तों की पहचान बताई। तो आज से 1400 साल पीछे या 1300 साल पीछे जब चले जाए तो वो क्या था, तो यही कुछ है आज भी। या सगे मामे चाचे कोई नहीं, वो तो माँ का भी कज़न था और बाप का भी कज़न था, और फिर प्यों प्यों के छितर मारे आज शादवीर ने कि पहले लिखवाया जी ये मेरा कज़न है, तो बाद में कहा जी मैंने किसी के साथ नहीं जाना, और जाना है तो मैंने अपने मामू के साथ जाना है। तो वो हंस के कह रहा था हाँ जी मामू, तो वो मामू ससुर भी तो था ना, माँ का भी कज़न था तो मामू ससुर भी था, और किस किस अच्छा वो मुनीर ब्रो को मामू कह रही है? हाँ नहीं, उसके भाई को मामू अच्छा, कह रही है। तो वो मामू था और छोटा क्या था? अब वो शामू था। वो मामू था, वो शामू बन गया था इसका। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, माफ़ करे, माफ़ करे। हमारा यहाँ बात उठाने का मकसद ही यही है, आप लोग हमारी सपोर्ट बने, क्योंकि हमारी अक्सर गरीब घरों की औरतें जो यूट्यूब पे आई हैं ना, तो उनके मतलब देखने में तो जो अमीर है वो भी यही कुछ कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी देख लो, बाप था डॉक्टर था अच्छा भला, उसने अपनी बेटियों को किस तरह नंगा किया। दूसरी तरह की बेगैरती कर रहे हैं और ये दूसरी तरह की बेगैरती। मैं वही तो कह रही हूँ, बेगैरती तो कर रहे हैं ना वो भी। ये जो है उनकी बेगैरती में फर्क और इनकी हाँ बेगैरती जी, में फर्क। ये अपने घर की औरतों को नंगा ला के, वो जो अमीर थोड़े से है वो अपने घर की औरतों को और तरह को नंगा करके, और उन्होंने उनको बनाई बंदे दिया है कि जो मर्जी करती फिरो, जहाँ मर्जी गाय भैंसों बकरियां बनो जाओ। हमारे तो बिल्कुल जी लाहौर में रहते हैं, ज़िंदगी होगी आज तक हमारा, आप इसको दकियानुसी चाहे कह लें कि हमारा माहौल है या जो भी कह लें, आज भी हमारा वही माहौल है कि हमने अपने घर के मर्दों के बगैर नहीं जाना, चाहे बाप है, भाई है, बेटा है, कोई भी रिश्ता है, ऐसी बात है। बिल्कुल। हाँ, औरत समझदार है, बच्चों वाली है, तो वो फिर जा सकती है अपने बच्चों के साथ जहाँ भी, अगर शॉपिंग करने जाना है, ये दूसरे अभी शहर भी में जाना है। शॉपिंग करने कुछ लेने जाना है तो मैं और मतलब हम दोनों में से अकेला कोई भी नहीं गया। नहीं जाता, कोई भी जाता नहीं। अच्छा, फिर कितनी शर्म की तो जी मामा, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, जो ऐसी माँ होती है ना, माँ के हिलाने के काबिल नहीं होती, वो बच्चों को अपनी बात मनवाने के लिए पता नहीं बच्चों को अपना भी काना कर किस लेते। किस तरह का वो अपने आप बना के बिठा ले, कहते हैं ना काना करके बिठा दे भाई, बच्चे जो मर्जी करें। और मैं ये मुझे ना रोके, पता नहीं वो क्या का क्या कर देती। तो मैं कहती हूँ ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा, ऐसी माँ जो अपनी ज़ात की सगी नहीं ना, वो अपने बच्चों के भी सगी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, शादवीर ने जो एक पॉइंट की बातें की है ना परी की मामा, उन्होंने उनके बातों से हम इत्तेफाक राय रखते हैं, और मुझे शुरू से पता चल गया था। मैंने 2-3 वीडियो बनाई हैं खिलाफ इसके ना शादवीर के, जब मुझे पता चला था मारा है, पीटा है, हाथ तोड़े हैं, लत्ता तोड़ियाँ, भन दित्तियाँ। तो वो जहाँ उसकी भाभी बाहर की वो शादी करवा रही है, तो मैंने उसके खिलाफ वीडियो बनाई है, क्योंकि मर्द ऐसा कुछ करते हैं। अच्छा, आज जो वो बात कर रहा है कि मेरे से चलो इख्तलाफ भी था, दूसरी बात मैं कसम नहीं उठाता, मियाँ बीवी बड़ी अनबन हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया था जिसकी इतनी सजा दी मुझे। और उसकी बहन ने भी कहा कि भाई की शॉपिंग तो यही करती थी, यही होशियार थी ये। और मैंने इनको देखा था, ये जो है इनका छोटू वीर की शादी पे हुमैरा को, इसको ये बड़ी बढ़िया जाके टाँकती थी, लटकाती थी, बड़ा करती कुछ करती थी। जब उसकी हीरा से शादी हो रही थी ना, तो ये दोनों शॉपिंग करना, सारा कुछ करना, तो एक दूसरे से इन्होंने बड़ा कुछ सीखा था। तो वाकई यही जाया करती थी हर चीज़ खरीदने। और जो पॉइंट की बात उसने की है ना, अगर इसको इख्तलाफ था ना मेरे से, चलो मैं मारता था, पीटता था, जो भी करता था, तो बाप से के साथ जाती, माँ के साथ जाती, भाई था उसके साथ जाती, चाचे जो रोए हैं, बिलाल इतना रोया है, बिलाल की बीवी एक समझो भाभी है और कज़न है, वो इतना रोया कि जब मुझे पता चला है कि मतलब सब ने बताया है कि वो किस तरह तड़पा है बंदा, कि इस तरह हाथ मार मार के ज़मीन पे। और आज उसने भी बताया, गफ़ार ने भी, और शाहदवीर भी बता रहा है कि पुलिस वाले, और आसिफ ने शायद बताया कि पुलिस वाले ने कहा कि बाबा जी उठ जाएं, ये औरत कभी आप लोगों की नहीं बन सकती, और आप छोड़ दें इसको। कि उन्हें भी पता लग गया, वो मर्द हज़रात थे, कि इस औरत को किस चीज़ की हवस इस टाइम जो है किसी के पास नहीं जाने दे रही। ये जितनी ये चालाक औरत है, आप कहते हैं कि मुनीर ब्रो ने इसकी वीडियो बनाई होगी और वो लोगों को दिखाना चाह रहा होगा, उसको नहीं पता। और कि आगे मेरी अगर कोई ऐसी बात पकड़ी जाती है तो साइबर क्राइम वाले क्या करेंगे। मुझे यकीन करें, कोई मुझे बात ये हज़म नहीं हुई, मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आई कि हमारे तो भाई इधर कहा जाता है कि शादीशुदा औरत को कभी ना भगाएं, कि शादीशुदा औरत को अगर भगा लिया ना तो वो आपके गले का फंदा बन जाती है। लेकिन भाई इधर तो मामला ही और है, 6-6 लाख मांगा गया है, 3-3 लाख मांगा गया, और एंड पे वो कुछ भी नहीं लगाते, और सब ने उनके साथ भेज दिया ना, जा ना अम्मा, ना अब्बा, ना बाबा, ना चाचा, ना ताया मामा, कोई भी नहीं।
हस्बैंड भी नहीं, औलाद भी नहीं, कोई भी नहीं है, और वो जी वो जो रिश्ते में मामा लगता है और जिसके भाई के साथ रलियाँ वो मना रही थी, उसके साथ भेज दिया गया है। अल्लाह जानता है भी, मैं अब अपने इदारों को तो गलत नहीं कहूँगी, मुझे नहीं पता कि कौन सा केस बनाया गया है या अब खुला का केस जो उसने दायर कर दिया है, तो अगर ये पेश नहीं होंगे, अब शायद ये बेचारे के हत्थे पल्ले क्या रह गया कि अब तो बात ही ख़त्म हो गई कि समझे खुला ही खुला है। और जब बात की गई है कि एक वक्त आएगा तो ये इसी तरह आके बैठेगी, तो बिल्कुल शाहदवी ने अगर इज्जत बनानी है ना वाईटी पे, तो फिर पुरानी मोहब्बतें छोड़नी पड़ेंगी, फिर इसको लानत भेजे। अगर ये उधर से अल्लाह पाक करे, रात का टाइम है, पंजतन पाक के सदके अल्लाह ताला इस औरत को, जिस तरह इसने पूरे ख़ानदान को, माँ बाप, पूरे रिश्तेदारों को, शोहर को, छोटे छोटे बच्चों को ज़िंदगी भर के लिए तानों के लिए कि ये छोड़ा है और ये इसने रुसवा किया, इंशाअल्लाह ताला ये मुनीर बरोज से रुसवा होके वापस आए और ये अपने घर के दरवाजे बंद करे। अभी वो कह रहा है ना गफ़ार भी, अभी भी हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि शायद आ जाए। तो वो इनका भी वो सब है डबरा हांडी में पड़ता है। हाँ जी, वो मछली की एक किस्म है ना, डबरा उसको कहते हैं, कि वो बहुत, कि उसकी माँ कहती है, एंड तक कहती है कि ये हंडिया से भी निकल के बाहर आ जाएगा, ना करो ना करो, बस ऐसी औरत को ना छोड़ दो उसके हाल पे और अल्लाह के सुपुर्द करो और इसको को अल्लाह ताला तुझे किए की सजा दे। और शादवी ने आज बददुआएं दी हैं झोली उठा के, तो ऐसे लोगों की आहें हैं, बददुआएं नहीं हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।